தீவிரவாதத்தை பரப்ப விரும்புபவர்களை எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும். அவர்களுக்கு அவர்களுடைய மொழியிலேயே பாடம் கற்றுக் கொடுக்க நமக்கு தெரியும். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் நாம் அவர்களுடைய மொழியில், ஊழல் மிக்க மக்கள் அவர்களுடைய மொழியில் தான் நாம் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும். சிசுபாலனுடைய பல குறைகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் கடைசியாக சுதர்சன சக்கரத்தை கொண்டு அவரை தண்டித்தார். 2008 நடந்த தாக்குதலை நாம் மன்னித்திருக்கின்றோம். மும்பை தாக்குதல் அதனால் தான் நடந்தது. இப்போது நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம். இப்போது நாங்கள் எங்களுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை நாங்கள் கையில் எடுத்திருக்கின்றோம். மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய தன்மை என்பது இது பகவான் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரினால் ஊக்கம் பெற்றது. இந்த சகிப்புத்தன்மை, இந்த உறவுகளை பற்றி நாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம். மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு துறையினுடைய கொள்கைகள் என்பது நட்புறவையும் தாண்டி எந்த ஒரு நீங்கள் அதை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற கொள்கை என்பது தெளிவாக நமக்கு இருக்கின்றது. பாகிஸ்தான் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அந்த மொழியை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. நாம் அவர்களுக்கு ஒரு தகுந்த பாலகோட் தாக்குதல் போன்று அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. இது இந்த உண்மையின் அடிப்படையில் இது அமைந்திருக்கின்றது. இதுதான் நம்முடைய முன்னுரிமையாக இருக்கின்றது. இந்த அடிப்படையில் நம்முடைய அடித்தளம் இருக்கின்றது. நம்முடைய திறன் என்பது பன்மடங்கு அதிகரித்திருக்கின்றது. கடந்த காலத்திலும் இருந்தது, ஆனால் இப்போது பன்மடங்கு அதிகரித்த நிலையில் உள்ளது. நான்காவது பெரிய பொருளாதாரமாக நாம் இருக்கின்றோம். 2028 நாம் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக மாறி இருக்கின்றோம். அந்த திசையை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். அவைத்தலைவர் அவர்களே, பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் பாதுகாப்பு துறையிலும் 2014 மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இன்று இந்தியா ஒரு தற்சார்பு கொண்ட பாதுகாப்பு துறையை வைத்திருக்கின்றது. உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் விரைவாக நாம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் மிகவும் போட்டித்தன்மை மிக்க நாடாக இருக்கின்றோம். தற்சார்பாகவும் இருக்கின்றோம். அவைத் தலைவர் அவர்களே, இப்போது இந்த அவைக்கு நான் சுருக்கமாக குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இது தொடர்பான கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அனைத்து சிடிஎஸ் மற்றும் அனைத்து உயர் அதிகாரிகள் அவர்கள் இந்த நடவடிக்கைக்கு தயாராக என்று கேட்டபோது அவர்கள் ஒரு நொடியும் அவர்கள் தாமதிக்கவில்லை. அவை தலைவர் அவர்களே, ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை என்பது நம்முடைய திறனுக்கானது. திறனை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றோம். நம்முடைய குடிமக்களை யாராவது கொன்றால் நாம் அமைதியாக இருக்க மாட்டோம். பாதுகாப்பு என்பது மிகவும் போட்டித்தன்மை மிக்கதாக இருக்கின்றது. எந்த ஒரு அழுத்தமும் இல்லாமல் இருக்கின்றது. நம்முடைய ஏவுகணைகள் அது எல்லையை தாண்டி செல்லக்கூடிய வலிமை பெற்றவை. எதிரியினுடைய இராணுவ வீரர்களையும் தாக்கக்கூடியது. நாம் உறுதியாக இருக்கின்றோம். தீவிரவாதத்தை நம் நாட்டில் இருந்து நீக்குவதற்கு உறுதியாக இருக்கின்றோம். இது முன்பே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு உத்தியாகும். இது அடிப்படையானது. மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே, பிரபலமான எழுத்தாளர் எஸ் நொய்பால் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார். பாகிஸ்தானில் இருந்தார். ஒரு மாறுபட்ட ஒரு நிலையை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அறிவற்ற தன்மை என்பது வலிமையான ஒரு தன்மையாக கருதப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இங்கே ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத தன்மை என்பது வலிமையாக பார்க்கப்படுகின்றது. அங்கு இது அறிவற்ற தன்மை அல்ல.
இது முன்பே திட்டமிடப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கின்றது. அந்த நடைமுறையாக இது இருக்கின்றது. தங்களுடைய தீவிரவாதத்தை அரசியல் கருவியாக பயன்படுத்துகிறார்கள். இது அவர்களுக்கான டூல் கிட்டாக இருக்கின்றது. பாகிஸ்தானுடைய முகமைகள் அதனை பயன்படுத்தும் போது அதனை கொள்கையாக அவர்கள் வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். சரியான நடத்தை என்பது இதனை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள். அதாவது இந்த டூல் கிட் ஆனது இது அந்த நாகரிக நடத்தைக்கு எதிரானதாக இருக்கின்றது, நாகரிக நாட்டிற்கு எதிரானதாக இருக்கின்றது. இது இது அடிப்படை சிந்தனையை காட்டுகின்றது, சகிப்புத்தன்மையற்ற சிந்தனையை காட்டுகின்றது. பாகிஸ்தானுடன் எல்லை சச்சரவு இல்லை, ஆனால் நாகரிகமற்ற மற்றும் காட்டு மிராண்டித்தனத்திற்கு எதிரான அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கின்றது. அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது, இந்தியாவை வெற்றி கொள்ள முடியாது. அதனால்தான் அவர்கள் தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிக்கிறார்கள். உலகத்தில் அவர்கள் அதனை நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அப்பாவி என்ற அந்த ஒரு கருத்தை நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். பாகிஸ்தான் மிகவும் உண்மையற்ற அடித்தளத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆபரேஷன் சிந்து நடவடிக்கை மூலமாக உலகிற்கு நாம் காட்டியிருக்கின்றோம். நாம் இந்த தீவிரவாதத்தை நாம் வேறறுப்போம் என்பதை காட்டியிருக்கின்றோம். மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, அடல்ஜி அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது நாம் பாகிஸ்தானுடன் ஒரு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியிருந்தோம். நாம் ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் நாம் எட்டியிருந்தோம். பாகிஸ்தான் தன்னுடைய நிலத்தை தீவிரவாதத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்பது அந்த பேச்சுவார்த்தையாக இருந்தது. பாகிஸ்தான் அதனை ஏற்றுக்கொண்டது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக 2009ஆம் ஆண்டு சர்மல் ஷேக் என்பவர் அதனை மீறினார்கள், இந்த ஒப்பந்தத்தை மீறினார்கள். இது பாகிஸ்தானின் தீவிரவாதத்துடன் இணைந்திருக்கின்றது. அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பங்களிப்பதற்கு பதிலாக அது நீர்த்து போகச் செய்தது. பாகிஸ்தான் இதற்கு எதிராக செயல்பட்டு இருக்கின்றது. அதனை வலுவிழக்க செய்திருக்கின்றது. அந்த பேச்சுவார்த்தையை வலுவிழக்க செய்திருக்கின்றது. பின்பும் கூட அது நடந்தது. பாகிஸ்தான் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நாடாக அது வெளிக்காட்டியது. 2006 கூட அந்த நாடு தீவிரவாதத்தை ஊக்கப்படுத்துகின்றது. அந்த நாடு தங்களை பாதிக்கப்பட்ட நாடாக கருதுகிறது என்பது ஒரு துரதிருஷ்டவசமானது. தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான எங்களுடைய போர் என்பது எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது அல்ல. சித்தாந்த அளவிலும் கூட இது தொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. பிரதமரும் கூட பல அளவுகளிலும் பல பிரதிநிதிகளை, மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள், அனைத்து கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் அந்த பிரதிநிதிகள் குழுவில் இருந்தார்கள். பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இருந்தார்கள். அந்த பிரதிநிதிகள் குழு உலகம் முழுவதும் சென்றது. தங்களுடைய கருத்துக்களை, இந்தியாவினுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்கள். தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். உலக ஆதரவை அவர்கள் பெற்றார்கள். நான் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன், நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்கள் பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மையை அவர்கள் உலகத்திற்கு முன்பு எடுத்துரைத்தார்கள். நாட்டினுடைய பெயரை மிகவும் சிறப்பாக அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள். அனைத்து கட்சி கூட்டம் என்பது ஆபரேஷன் சிந்து நடவடிக்கை பற்றி நடத்தப்பட்டது. நாட்டின் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அனைத்து சித்தாந்தங்களையும் வேறுபாடுகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஒற்றுமையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். இராணுவ வீரர்களுடனும் அரசாங்கத்துடனும் அவர்கள் ஒன்றிணைந்தார்கள். இதற்காக நான் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை இதற்காக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய ஒரு அழகாகும். மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல ஆபரேஷன் சிந்து நடவடிக்கை என்பது நிறுத்தப்படவில்லை, அது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. தேவைப்பட்டால் பாகிஸ்தான் மீண்டும் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை, விஷமத்தனமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் மேலும் தீர்மானமான நடவடிக்கை என்பது, செயல்பாடுகள் என்பது தொடரும்.
மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை என்பது பாகிஸ்தானில் ஒரு மன சஞ்சலம் இருந்தது. அதை நாங்கள் நீக்கி இருக்கின்றோம். நான் மீண்டும் ஒன்றை நினைவுபடுத்துகின்றேன். தேசிய கவிஞர் ராம்தாரி லிங்கர் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார், ஒரு தீய சக்தி இருந்தாலும் அதனை நாங்கள் மிகவும் கோழையாக்கி விடுவோம். நாம் நம்முடைய பாதுகாப்பு அமைப்பை நாம் வெளிப்படுத்தவில்லை, திறனை மட்டும் வெளிப்படுத்தவில்லை. நாம் பல சான்றுகளை, நம் திறனுக்கான துணிச்சலுக்கான சான்றுகளை நாம் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றோம். சிறந்த பதிலடியை நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம். நாம் எல்லையையும் தாண்டி சென்று இருக்கின்றோம். தீயவற்றை செய்யக்கூடிய நபர்கள் அவர்கள் வெளிப்புறமும் சென்று நாங்கள் அவர்களை கையாளுவோம். இது போன்ற நாடுகளுக்கு அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை எடுப்போம். மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையில் நாங்கள் செய்திருப்பது அனைத்தும் துல்லிய தாக்குதலும் விமான தாக்குதலையும் நடத்தியிருக்கின்றோம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை வழங்கி இருக்கின்றது. முன்பும் கூட இது வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அனைத்திற்கும் ஒரு கால நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும். நம்முடைய அரசாங்கம் ஒரு பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மையை கொள்கையாக வைத்திருக்கின்றது. நாடுகளிடம் கூறியது என்னவென்றால், தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறோம் என்பதைத்தான். ஷாங்காய் கூட்டத்திலும் கூட ஒரு பிரகடனம் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு என்பது அங்கு நீர்த்து போகச் செய்தது. மிகவும் தெளிவான ஒரு நிலைப்பாடு என்பது இந்தியாவிற்கு இருந்தது. நாங்கள் அதில் கையெழுத்திட மாட்டோம், அந்த கூட்டு பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட மாட்டோம் என்ற உறுதியான நிலைப்பாடு இருந்தது. அதனுடைய பின்விளைவுகளாக என்ன நடந்தது என்று சொன்னால், அவைத்தலைவர் அவர்களே, பிரதமர் அவர்கள் பிரேசிலுக்கு சென்றார். அங்கு சென்றார். சீனாவிற்கு முன்பு அங்கு கூட்டு பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது. ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. அது கண்டிக்கப்பட்டது. அதுதான் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களினுடைய ஒரு தலைமைத்துவமாகும். இந்தியாவினுடைய அந்த உறுதிப்பாடு என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த தாக்குதல் என்பது தீவிரவாத தாக்குதல் அங்கு கண்டிக்கப்பட்டது. நான் இந்த அவைக்கு வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்புகின்றேன். மும்பையில் இது போன்ற மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் என்பது நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அரசாங்கம் ஒரு சிறப்பான நடவடிக்கைகள் எடுத்தது. ஆனால் அது முழுமையாக நடைமுறையாகவில்லை. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பல தேசிய மற்றும் உலக முகமைகளில் அதனை கண்டிக்கவில்லை. அது அவ்வாறு அப்போது நடைபெறவில்லை. அதற்கு பிறகு, அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு, இப்போது பிரிக்ஸ் கருத்தரங்க அந்த உரைகளை பாருங்கள். மும்பை தீவிரவாத தாக்குதல் பற்றி குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் மோடி அவர்கள் தன்னுடைய அரசாங்கத்தை அமைத்ததற்கு பிறகு தற்போது நிலைமை மாறி இருக்கின்றது, ஒட்டுமொத்தமாக மாறி இருக்கின்றது. 2007ஆம் ஆண்டு பிரிக்ஸ் மற்றும் 2017இல் அந்த மாநாட்டில் பார்த்தால், ஜெய்ஷ் மற்றும் லஷ்கர் தீவிரவாத அமைப்புகள் கண்டிக்கப்பட்டன. அது பயங்கரவாதிகளினுடைய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது. ஏனென்று சொன்னால், ஒரு ஆண்டிற்கு முன்னதாக நீங்கள் பார்த்தால் பூனே சம்பவம் நடந்தது. நம்முடைய இராணுவ வீரர்கள் பௌதாவிற்கு சென்றார்கள், துல்லிய தாக்குதல் நடத்தினார்கள். நாம் உலகத்திற்கு நாங்கள் தெளிவாக சொன்னது என்னவென்றால், இந்த எல்லைக்கு தாண்டியும் கூட நாங்கள் அந்த தீங்கு செய்பவர்களை நாங்கள் தண்டிப்போம் என்று கூறினோம். இது மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தின் கீழ் நடந்தது. நாங்கள் இதையே முந்தைய அரசாங்கமும் ஏற்றிருக்க வேண்டும், நடத்தியிருக்க வேண்டும். அவர்கள் இந்த தீவிரவாத சவால்களை அவர்களும் எதிர்கொண்டார்கள். மும்பை தீவிரவாத தாக்குதல்கள் இன்னமும் கூட நாட்டின் குடிமக்களினுடைய ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் இருக்கின்றது. இன்னமும் ஒரு தடமாக அது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் தன்னுடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இந்த கூட்டணி காலகட்டம் பற்றிய அந்த புத்தகத்தில் அவர் எழுதியிருக்கின்றார். மும்பை தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட போது
அவர் அதை பற்றி எழுதியிருக்கின்றார். இந்தியா கராச்சி துறைமுகத்திலிருந்து தீவிரவாதிகள் வந்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். வெளியிலிருந்து வந்தக்கூடிய நபர்கள் என்ற போர்வையில் இதனை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த அமைச்சரவையில் இது தொடர்பான விவாதம் நடந்ததாக சூடான விவாதம் நடந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஒரு இராணுவ தலையீடு அங்கு இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார்கள். அது மறுக்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். நான் இதனை சொல்லவில்லை, அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, மூத்த அதிகாரி, வெளியுறவு துறையினுடைய மூத்த அதிகாரி அவர் எழுதியிருக்கின்றார், அஜய் விசாரியா. அவர் வெளியுறவு செயலராக இருந்தார். மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது. பிரணப்தா அவர்கள் கேட்டார்கள் என்ன செய்வது என்று. வெளியுறவு செயலர் சிவசங்கர் மேனன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், இந்தியா ஒரு குரூஸ் ஏவுகணைகள் மூலமாக தாக்குதல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. பின்பு அவர் அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் அவர் நன்றி கூறினார். ஆனால் அதை பற்றி வேறு எதுவும் சொல்லவில்லை. அரசாங்கத்திற்கு எது சரி என்று படுகிறதோ அது நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அப்போது இருந்த அரசாங்கம் அப்போது துல்லிய தாக்குதல், ஒரு வான் தாக்குதல் நடத்தியிருந்தால் பாகிஸ்தான் அந்த நிலைமை அப்போது மாறி இருக்கின்றும். உறுதியான சக்தி வாய்ந்த நடவடிக்கை என்பது தேவையாக இருந்தது. பாகிஸ்தானினுடைய அந்த அமைப்புகள் மீது, பாகிஸ்தான் ஆதரவால் இயங்கும் அமைப்புகள் மீது அந்த நடவடிக்கை என்பது தேவைப்படுகின்றது. அந்த தாக்குதல் அப்போது 2008 மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு நடந்திருந்திருந்தால், ஆனால் அவர்கள் மென்மையான பேச்சுவார்த்தையை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள். இது அரசாங்கத்தை நாங்கள் அப்போது இருந்த அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கவில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் யார் அந்த நேரத்தில் இருந்தார்களோ அவர்கள் அந்த முடிவை எடுத்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைய இந்தியா என்பது வேறு ஒரு சிந்தனையில், வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில், வேறு ஒரு வகையான நடவடிக்கையில் செயல்படுத்துகின்றது. நீங்கள் எதிர்க்கட்சிகள் தீவிரவாதத்தை ஒரு உத்தியாக பார்த்தீர்கள். உங்களுக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கான அதை தாண்டி வேறு எதுவும் செய்யவில்லை. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களினுடைய தலைமைத்துவத்தின் கீழ் நம்முடைய நாடு முன்பு இருந்ததை விட மாறியிருக்கின்றது. 2 டோசியர்கள் ஒரு தீவிரமான 2 நாட்களுக்கான அந்த சான்றுகளை தாண்டி தீர்மானமான நடவடிக்கைகள் தற்போது எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு பதிலடி வழங்கி இருக்கின்றது. இந்தியா இப்போது தீவிரவாதத்தினுடைய வேர்களுக்கே சென்று நடவடிக்கை எடுக்கின்றது. நான் இதை பற்றி இந்த அவைக்கு நான் சுருக்கமாக கூற விரும்புகின்றேன். நம்முடைய பாதுகாப்பு அமைப்புகள் என்பது அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒன்றிணைந்து வந்திருக்கிறார்கள். என்ன நடவடிக்கை தேவைப்படுகின்றதோ அதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கின்றோம். நாங்கள் உறுதியுடன் இருக்கின்றோம். மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, இறுதியாக நான் கூறுவது என்னவென்றால், இது ஒன்றிணைந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம். நம்முடைய இறையாண்மையை, நம்முடைய சுய மதிப்பை உயர்த்துவதற்கு நாம் இதனை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய அரசியல் ஒற்றுமை என்பது நம்முடைய மிகப்பெரிய வலிமையாக இருக்கின்றது. அவைத்தலைவர் அவர்களே, தீவிரவாதத்திற்கு ஆதரவளிப்பது, அவர்களுக்கு ஒரு தெளிவான செய்தி செல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தாய்நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வந்திருக்கிறோம் என்ற செய்தி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் அரசியல் சிந்தனையை தாண்டி, சித்தாந்தத்தை தாண்டி நாம் ஒன்றிணைய வேண்டும். நாம் மேலும் தேசிய உறுதிக்கு வலிமை கொடுக்க வேண்டும். இந்த வார்த்தைகளோடு எனக்கு இது தொடர்பாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்திருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் அனைத்து மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் என்னுடைய இதனை ஒப்புரிமையாக கேட்டதற்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. தருண் கோகோய் அவர்கள். धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
இன்று இந்த சிறப்பு விவாதத்தில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம். இந்த விவாதம் ஏன் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் சமீபத்தில் இந்த போர் நடைபெற்றது. இந்த போர் பற்றிய தகவல்கள் என்பது ஒரு வகையில் அண்டை நாடு மற்றும் உலகத்திற்கு இது தொடர்பான உண்மைகள் தெரிய வேண்டும். सारे देश में சில சக்திகள் சில குழப்பங்களை தெரிவித்து हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है, 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें POK के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए तोयबा और जैसे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय DGMO ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया
ये हमले स्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मुहि मारा तिन मुहि मारे, अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस-400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एमिनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे एक गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने
जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, प्लीज बैठिए। आप क्यों खड़े? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ कोई आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली।
और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल, यह दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल, मातृभूमि की रक्षा करने का जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका दर्शन 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों ने देखा। मुझे खुद भी और प्रधानमंत्री जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर, उधमपुर के कमांड सेंटर पर, हर जगह प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल अपनी पूरी बुलंदी पर था। उनकी आंखों में विश्वास है और उनका संकल्प अडिग है। वे न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी, अध्यक्ष महोदय, रक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो
अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मैं लगभग 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है, एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था, तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया भी है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया, तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह प्रश्न हम लोगों ने नहीं पूछा। मशीनों और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की। इसी तरह 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है। इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों,
या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने यह चाहा। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्व जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी। यह हमारे भारत की प्रकृति थी। लाहौर पहुंचकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीनारे पाकिस्तान पर विजिटर्स रूप में जो लिखा था, जिसका जिक्र लोग आज भी करते हैं, और उन्होंने लिखा था, उसकी मैं चर्चा करता हूं। उन्होंने लिखा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत अस्थायी शांति और मित्रता का आकांक्षी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर भी कहता हूं, एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सोच थी, यह हमारी शांति की पहल थी। यह पहल हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना, हमारी नैतिक शक्ति और हमारी सभ्यता के उन मूल्यों से निकली थी जो शांति को शक्ति मानती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे शांति के प्रयास को हमारी नाइविटी, उदारता या सरलता समझ लिया गया। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था। हम दोस्ती के राह पर थे तो वो षड्यंत्र की राह पर था। जब हम मामला खुलकर सामने आया तो हमारे वीर सैनिकों ने इस घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया, और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। अध्यक्ष महोदय, तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। यानी अटल जी जो शांति का पैगाम लेकर गए, वही अटल जी शक्ति का भी परिचय देने में तनिक भी नहीं हिचके। यही है भारत। अध्यक्ष महोदय, यह सामर्थ्य का उद्घोष था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका जवाब भी उतनी ही दृढ़ता से दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की तो भारत ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, हम वाकई में शांति की राह पर चलना चाहते थे, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति बुद्ध की है, युद्ध की नहीं है। हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन बाद में हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से, 2019 में बाला